اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر کام کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے پاک نام اور بابرکت کلام سے۔ تلاوت کلام پاک کے لیے میں گزارش کروں گا جناب اسلام شکارپوری صاحب۔ جی تلاوت فرمائیں اسلام شکارپوری صاحب۔ تلاوت فرمائیں جناب اسلام شکارپوری صاحب۔ جی میں تلاوت نہیں کر سکتا، میں قرآن نہیں پڑھا۔ اچھا جی فرق مشتاق ضیاء صاحب۔ اگر نعت کے لیے کہیں گے تو میں نعت پڑھوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔ یوں ہی نہیں مجھے اپنے خدا سے عشق ہوا، خدا سے پہلے شب دو سرا سے عشق ہوا۔ نذرانہ کونین پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا جناب اسلام شکارپوری صاحب انڈیا سے۔ نذرانہ عقیدت بازو سرور عطا فرمائے۔ آواز نہیں جا رہی کو نعت پڑھنی ہے اچھا جی آپ نے نعت ہلو آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے۔ سب سے اعلیٰ ہمارے محمد، کہیں سب سے اعلیٰ ہمارے محمد، پریشان دلوں کے سہارے محمد، کہ طوفاں بھی کوئی ملائے نہ آنکھیں، کہ طوفاں بھی کوئی ملائے نہ آنکھیں، سفینے کے ایسے کنارے محمد، ہے نبیوں میں سب سے وہ اعلیٰ مقامی، ہے نبیوں میں سب سے وہ اعلیٰ مقامی، خدا کے بہت ہیں پیارے محمد، جو انسانیت کو بھولے تھے انسان، جو انسانیت کو وہ بھولے تھے انسان، زمین پر یورپ نے اتارے محمد، محمد سے الفت ہے ایمان ہمارا، محمد سے الفت ہے ایمان ہمارا، ہے ملت کی آنکھوں کے تارے محمد، اور نظام جہاں کے پریشان تھے گیسو، نظام جہاں کے پریشان تھے گیسو، خلوص و وفا سے سوارے محمد، اور فرشتوں نے پوچھا امت میں کس کی، فرشتوں نے پوچھا امت میں کس کی، وہ تربت میں مومن پکارے محمد۔ مکہ سماعت فرمائیں۔
ہے اسلام امت محمد کو پیاری، ہے اسلام امت محمد کو پیاری، بچا لیں گے ہم کو ہمارے محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، شکریہ نوازی۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا کہ اے رب العالمین، مجھے اپنے ماتھے میں ایک ایسا نور محسوس ہوتا ہے جسے میں محسوس تو کرتا ہوں لیکن اس کو سمجھ نہیں پا رہا، تو یا رب کریم مجھے اس نور کے متعلق جو ہے وہ بتائیے کہ یہ میرے ماتھے میں کیسا نور چمکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے آدم، یہ نور وہ ہے جس کے لیے یہ کائنات میں نے بنائی، اور اس کائنات میں پہلے انسان تم ہو اور تمہارے ماتھے میں نور رکھا گیا ہے، اور یہ نور تم سے چلتے 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 یہاں تک کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نور سے اس دنیا میں مرز وجود میں آئیں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی یا رب العزت، میں اس نور کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ اے آدم، اپنے انگوٹھے ایسے ملاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے انگوٹھے ملائے تو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نور مبارک جو آپ کی پیشانی میں رکھا گیا تھا، چمکتا تھا، وہ ان انگوٹھوں کے ناخنوں میں جو ہے یہ وہ چمکنے لگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب وہ نور دیکھا تو اس کو فرط عقیدت اور محبت سے چوم لیا۔ تو اب جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی کسی جگہ پر بھی لیا جاتا ہے تو ہم بھی حضرت آدم علیہ السلام کی سنت کو پورا کرتے ہیں اور اپنے انگوٹھے کوئی شرک یا بدعت کے لیے نہیں چومتے، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کر کے کہ حضور پاک کا نور حضرت آدم علیہ السلام نے انگوٹھوں کے ناخنوں میں چمکتا ہوا دیکھا تھا، تو ہم جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی سنت پوری کرتے ہیں۔ احباب عزیز کا گلوبل رائٹرز ایسوسی ایشن اٹلی اور گفتگو فورم پاکستان کے اشتراک سے آج عالمی مشاعرے کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں آپ تمام احباب کو خوش آمدید۔ آج کی تقریب کی صدارت فرما رہے ہیں جناب فصیح احمد ساحر صاحب، تھوڑی دیر میں تشریف لائیں گے۔ شجاع زمان شاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور مہمان خصوصی ہیں جناب اسلام شکارپوری صاحب انڈیا سے، اور رحمان امجد صاحب سیالکوٹ پاکستان سے، مختار طلحری صاحب انڈیا سے۔ آپ تمام احباب کو خوش آمدید۔ احباب ذوالفقار مجلس سے صدارت کی اجازت سے مختار طلحری صاحب موجود ہیں، فصیح احمد ساحر صاحب نظر نہیں آ رہے اسکرین پہ، شجاع زمان صاحب تھوڑی دیر پہلے موجود تھے لیکن شاید وہ آف لائن ہو گئے ہیں۔ ابھی بھی نظر آ رہے ہیں، موجود ہیں۔ جی آپ مجلس سے صدارت میں منچ پر موجود ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آج کے پروگرام کا آغاز آپ صدارتی کلام سے عطا فرمائیں، آغاز فرمائیے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ پلیز بھائی مجھے اس کے بعد جو مجھے پڑھوا دیجیے گا، نیٹ بہت تھوڑا سا ہوتا ہے۔ جی 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 شجاع صاحب آپ صدارتی کلام عطا فرمائیں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کے کلام کے دوران میں 1 منٹ کے لیے غائب ہونا ہے، میں ایک دوست ہے وہ لنک مانگ رہا ہے، میں ان کو بھیج نہیں سکا تو میں لنک بھیج کے آ رہا ہوں۔ جی بہتر، آپ اپنا کلام عطا فرمائیں۔ عرض کرتا ہوں کہ جناب، جب بھی پوچھا کہ کون ہے دشمن، واہ، شاد ہی نام لکھا ہے۔ کیا جب بھی پوچھا کہ کون ہے دشمن، شاد اپنا ہی نام لکھا ہے، اور جب پکارا گیا سزا کے لیے، دوستوں کو سلام لکھا ہے، دوستوں کو سلام لکھا ہے۔ اور ایک غزل کا مطلب ملاحظہ کیجئے کہ بارہا عرض تمنا
کہ مذکور نہیں. بارہا عرض تمنا مجھے مذکور نہیں، پیار کرتا ہوں مگر اتنا میں مجبور نہیں. پیار اتنا میں مجبور نہیں، مجھے خودداری سے الفت کا بھرم رکھنا ہے. خودداری سے الفت کا بھرم رکھنا ہے، خوگرے غم ہوں میری جان میں محصور نہیں. خوگرے غم ہوں میری جان میں محصور نہیں، اور عزم و ہمت سے جلاتا ہوں وفاؤں کے چراغ. عزم و ہمت سے جلاتا ہوں وفاؤں کے چراغ، دل میرا حسرت ناکام سے رنجور نہیں. حسرت ناکام سے رنجور نہیں. اور تم جو کہتے ہو، انیس بھائی سن رہے ہیں آپ؟ جی جی تم بسم جو اللہ. کہتے ہو کہ اس دور میں سب چلتا ہے، تم جو کہتے ہو کہ اس دور میں سب چلتا ہے، تمہیں منظور ہے جو وہ مجھے منظور نہیں. کیا کہنا واہ کیا کہنے ہیں، سبحان تم اللہ. کہتے ہو کہ اس دور میں سب چلتا ہے، تمہیں منظور ہے جو وہ مجھے منظور نہیں. اور شہر ویران میں خوشیوں کا نشاں کیسے ملے. شہر ویران میں تنہری صاحب آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، آپ کچھ کام کر رہے ہیں اپنا. آواز نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا گوشت پر آواز ہے. جی 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 یعنی آپ کچھ اپنے امور کی انجام دہی کر رہے ہیں. خیر بہرحال تم جو کہتے ہو کہ اس دور میں سب چلتا ہے، تمہیں منظور ہے جو وہ مجھے منظور نہیں. شہر ویران میں خوشیوں کا کیسے ملے. شہر ویران میں خوشیوں کا نشاں کیسے ملے. دل گرفتہ تو بہت ہیں دل مسرور نہیں. دل گرفتہ تو بہت ہے دل مسرور نہیں. اور ظلمت شب کی سیاہی سے پریشان نہ ہو. ظلمت شب کی سیاہی سے پریشان نہ ہو. پھر سحر ہوگی میرے یار، پھر سحر ہوگی میرے یار، وہ دن دور نہیں. پھر سحر ہوگی میرے یار، وہ دن دور نہیں. اور ان اندھیروں میں اجالوں کی بے سود، ان اندھیروں میں اجالوں کی ہے خواہش بے سود. قلب مومن اگر ایمان سے معمور نہیں، قلب مومن اگر ایمان سے معمور نہیں، پھر سحر ہوگی. ان اندھیروں میں اجالوں کی ہے خواہش بے سود. قلب مومن اگر ایمان سے معمور نہیں. اور عرض کر رہا ہوں کہ رب ارحم کی عطا ہو یا کرم کی بارش. کیا کہنا. رب ارحم کی عطا ہو یا کرم کی بارش، تیرے فیضان سے خواہش کوئی مستور نہیں. تیرے فیضان سے خواہش کوئی مستور نہیں. اور کیسی حسرت ہے یہاں، کیسی حسرت ہے یہاں، شاد نہیں رہ سکتے. یہاں شاد کیا گلستان کی بہاریں میرا مقدور نہیں. کیا گلستان کی بہاریں ہے یہاں، شاد نہیں رہ سکتے. کیا گلستان کی بہاریں میرا مقدور نہیں. اور تم کہتے ہو کہ اس دور میں سب چلتا ہے، تمہیں منظور ہے جو وہ مجھے منظور. بارہا عرض تمنا مجھے مذکور نہیں،
प्यार करता हूँ, मगर इतना मैं मजबूर नहीं, इतना मैं बहुत शुक्रिया आपके। जी बहुत शुक्रिया जनाब शुजाउज़्ज़मान खान शाद साहब, आज मजलिस सदारत में मंच पर हमारी सरपरस्ती कर रहे हैं। मेरे कुछ मोबाइल में आवाज़ का मसला है, तो मुख्तार तलहरी साहब इंडिया से आज की तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी तशरीफ फरमाया। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपना कलाम अता फरमाइए, तो मैं एक बार आउट होकर दोबारा इन होता हूँ ताकि मोबाइल की मेरे की आवाज़ ठीक हो जाए। जी बेहतर। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनिल भाई, अस्सलाम आपने मेरी वालेकुम। बात पर ध्यान दिया। मुलाजा फरूख सुना रहा हूँ, साल भाई मुलाजा फरमाए। दीजिए अता कीजिए। जी आ रही है, अता कीजिए। कहता हूँ कि काश मिल जाता हमें पेशा कहीं फरहाद का, काश मिल जाता हमें पेशा कहीं फरहाद का, पूरा हो जाता कोई अरमा दिले नाशाद का। पूरा हो जाता कोई अरमा, हमें पेशा कहीं फरहाद का, बाबा पूरा हो जाता कोई अरमा दिले नाशाद का। और उसने मतलब मुलाजा फरमाया, कहता हूँ कि क्यों कोई एहसान लेता मैं किसी जल्लाद का, अरे वाह, क्यों कोई एहसान लेता मैं किसी जल्लाद का, फायदा जालिम से क्या होता मुझे फरियाद का। अच्छा वाह वाह, क्यों कोई एहसान लेता मैं किसी जल्लाद का, फायदा जालिम से क्या होता मुझे फरियाद का। देखिए बहुत शुक्रिया। लोग हीला ढूंढते हैं क्यों मेरी इमदाद का, वाह लोग हीला ढूंढते हैं क्यों मेरी इमदाद का, तज़किरा मेरी जुबां पर था मेरे हमजाद का। अच्छा लोग हीला ढूंढते हैं क्यों मेरी इमदाद का, तज़किरा मेरी जुबां पर था मेरे हमजाद का। और चौथा मतलब मुलाजा फरमाए, कहता हूँ कि माजरा सबको सुनाऊं मैं दिले नाशाद का, माजरा फरूख भाई मुलाजा फरमाए कि माजरा सबको सुनाऊं मैं दिले नाशाद का, शौक इतना भी नहीं है हर किसी की दाद का। माजरा सबको सुनाऊं मैं दिले नाशाद का, शौक इतना भी नहीं है हर किसी की दाद का। अब जमाने की ये बतौर खास मुलाजा फरमाया, कहता हूँ अब जमाने की रिहाई से हुए महफूज हम, अब जमाने की रिहाई से हुए महफूज हम, इसलिए ममनून होना चाहिए फैयाद का। अब जमाने की रिहाई से हुए महफूज हम, इसलिए ममनून होना चाहिए फैयाद का। और फिर देखेंगे क्यों जमाने की निगाहें उठ रही मेरी तरफ, क्यों जमाने की निगाहें उठ रही मेरी तरफ, दिल मेरा मरकज बना है जब किसी की याद का। अरे वाह, क्यों जमाने की निगाहें उठ रही टूट गई मेरी तरफ। अच्छा अच्छा, दिल मेरा मरकज बना है जब किसी की याद का, अनिल भाई दिल देखिए मेरा जरा मरकज आवाज। बना है जब किसी की याद का। और जाने कितने मारे मारे फिरते हैं दुनिया में लोग, वाह जाने कितने मारे मारे फिरते हैं दुनिया में लोग, फायदा कुछ भी नहीं मिलता उन्हें असनाद का। अच्छा है, अच्छा है। बहुत अच्छा। जाने फायदा कितने कुछ भी- मारे मारे फिरते हैं दुनिया में लोग, वाह वाह, फायदा कुछ भी नहीं मिलता उन्हें असनाद का। जी जी, और सरे मक्का शेर पेश कर रहा हूँ, मुलाजा फरमाए। और ये तस्वीर शेर है, कहता हूँ कि जाने किस मिट्टी के होते हैं बने बदबख्त ये, बदबख्त ये। मिट्टी के होते हैं बने बदबख्त ये, जालिमों पर कुछ असर होता नहीं फरियाद का।
अच्छा है। अरे वाह बहुत अच्छा। होते हैं बने बदबख्त ये, क्या कहना जान है, नहीं पर कुछ असर होता नहीं फरियाद का। क्या और बात। मक्के का शेर भी मुलायदा फरमाने, कहता हूँ कि बाद मरने के लिए मुख्तार मैं अपना नहीं, वाह बाद मरने के लिए मुख्तार मैं अपना नहीं, था बदन में भी कोई हिस्सा मेरी औलाद का। वाह वाह बाद मरने के लिए मुख्तार मैं अपना नहीं, था बदन में भी कोई हिस्सा मेरी औलाद का। काश मिल जाता हमें पेशा कोई फरहाद का, पूरा हो जाता कोई अरमा दिले नाशाद का। बहुत खूब, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत खूब। अभी और दावतें देने जाना है, क्या कहना है? जाना है 3 तारीख को, तो उसकी अभी दावतें देना जाना है, इसलिए मैं माजरत के साथ आज इजाजत चाह रहा हूँ। कोई बात नहीं, आप तमाम प्रोग्रामों में बड़े खंदा पेशानी और मोहब्बत के साथ तशरीफ लाते हैं, तो आज भी आप एक नेक काम के लिए जा रहे हैं ना, अल्लाह ताला आपकी ये नेकी कबूल फरमाए। आप मुशायरे में तशरीफ लेके जा रहे हैं, हमारे लिए भी दुआ फरमाइएगा गजल पढ़ के। ये पे इधर पे ऐसी करते रहते हैं माशाल्लाह। अल्लाह के जी जी, बहुत शुक्रिया जी। साहिब सदारत की इजाजत से मैं चंद अशार पेश करता हूँ। जी अल्लाह की मैंने अपने आप को जब भी आंखें मीच के देखा, अरे वाह कहने हैं, अरे वाह मैंने अपने आप को जब भी आंखें मीच के देखा, मीच के देखा, खुद से बढ़कर एक दुनिया थी, आंखें मीच के देखा। वाह वाह वाह, देखा बहुत अच्छा। मैंने अपने आप को जब भी आंखें मीच के देखा, मीच के देखा, खुद से बढ़कर एक दुनिया थी, आंखें मीच के देखा। मीच के देखा, आंखें खोल के देख नहीं सकते क्या दुनिया वाले, वाह आंखें खोल के देख नहीं सकते क्या दुनिया वाले, दुनिया ने मुझको हर पल ही आंखें मीच के देखा। वाह वाह, क्या बात। आंखें खोल के देख नहीं सकते क्या दुनिया वाले, दुनिया ने मुझको हर पल ही आंखें मीच के देखा। किस किस के पत्थर बरसाते जख्मी हाथ हुए हैं, किस किस के पत्थर बरसाते जख्मी हाथ हुए हैं, और किस किस ने गुलबारी की आंखें मीच के देखा। वाह वाह, क्या बात, वाह बहुत अच्छा। किस किस के पत्थर बरसाते जख्मी हाथ हुए हैं, और किस किस ने गुलबारी की आंखें मीच के देखा। शुजा साहब शेर देखिए कि मन में रात लापूं सारे नी सारे धा सोचूं, मन में राग लापूं सारे नी सारे धा सोचूं, नापा नीसा मापा गानी आंखें मीच के देखा। अच्छा आप हड़ताल किए। मन में राग लापूं, मन में राग लापूं, ये राग बागेश्वरी, ये राग बागेश्वरी है, बागेश्वरी। मन में राग लापूं सारे नी सारे धा सोचूं, मापा नीसा मापा गाने आंखें मीच के देखा। आंखें खोल के देख रहा था, कुछ भी समझ ना आया। आंखें खोल के देख रहा था, कुछ भी समझ ना आया। बिन करने के जो है भरने आंखें मीच के देखा। अरे वाह, आंखें खोल के देख रहा था, कुछ भी समझ ना आया। बिन करने के जो है भरने आंखें मीच के देखा। मेज पे रखे कप से उड़ती भाप ने आंखें खोली। ताहिर अब्दाल साहेब आप चाय पी रहे थे, मैं भी अभी चाय पी गया, कप मैंने साइड पे रखा। मेज पे रखे कप से, मेज पे रखे कप से उड़ती भाप ने आंखें खोली। सूंघी खुशबू वाली काफी आंखें बीच नहीं अच्छा मेज पे रखे कप से उड़ती भाप ने आंखें खोली। क्या बात, सूंघी खुशबू वाली काफी आंखें मीच के देखा। मैंने अपने आप अली सहमत है यकताई से सोचा। मैंने आप अली सहमत है यकताई से सोचा। मैंने आप अली सहमत है यकताई से सोचा।
کیا کیا صورت تیری ہوگی آنکھیں بیچ کے دیکھا. میں نے اپنی یکتائی سے سوچا کیا کیا صورت تیری ہوگی آنکھیں میچ کے دیکھا. میں نے اپنے آپ کو جب بھی آنکھیں میچ کے دیکھا خود سے بڑھ کر ایک دنیا کی آنکھیں میچ کے دیکھا. آپ کی سماعت کا بہت بہت شکریہ. گلوبل رائٹرز ایسوسی ایشن اٹلی اور گفتگو فورم پاکستان کے زیر تمام آن لائن عالمی مشاعرے میں جن احباب نے ہمیں جوائن کیا ہے ابھی تھوڑی دیر میں سب کو خوش آمدید. خوش رہیے, ہمارے ساتھ رہیے. اور یہ پروگرام جو ہے یہ آپ کا پروگرام ہے. اس پروگرام کو ہم بالکل ادبی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں اور خوش مزاجی سے دیکھتے ہیں. زندگی زندہ دلی کا نام ہے, مردہ دل کیا خواب جیا کرتے ہیں. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی دوست اپنا کلام سنائے بہت مطمئن اور اطمینان کے ساتھ سنائے, وہ یہی محسوس کرے کہ میں اپنے دوستوں میں بیٹھا ہوں اور میں اپنے دوستوں کو پروگرام سنا رہا ہوں. جی بہت شکریہ. جی مجلس صدارت کی اجازت سے, بلکہ مجلس صدارت کی اجازت سے آج تو جو ہے وہ جناب شجاع الزمان شاد صاحب اکیلے صدر نظر آ رہے ہیں مجھے. ٹھیک ہے جناب, آپ خوش رہیے, ہماری صدارت فرمائیے. جب تک یہ موجیں ماریں, جب تک ہمارے کوئی دوسرے صدر تشریف نہیں لاتے, تب تک آپ ہمارے قبضہ رکھیے. جی جیسے حکم فرمائے, جیسے حکم فرمائے. جی بہت شکریہ جناب. نگار بانو ناز صاحبہ کولکتہ انڈیا سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. زبان و بیان کی شاعرہ ہیں, بہت خوش مزاجی سے اور خوش اخلاقی سے شعر سناتی ہیں. بہت ہی اچھی انسان ہیں اور یہ بہت اچھی گھریلو خاتون بھی ہیں. اکثر ان کی تصویریں فیس بک پہ دیکھتے ہیں بیٹیوں کے ساتھ, اپنی نواسیوں کے ساتھ. تو یوں ہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ ان کے بیٹیاں اور نواسیاں نہیں ہیں بلکہ ان کی سہیلیاں ہیں, چھوٹی چھوٹی سہیلیاں, پیاری پیاری سہیلیاں. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ جہاں میں ایک توانا اور نامور نام ہے, وہیں آپ گھر میں بھی جو ہے بہت خوش اسلوبی سے اپنا گھر چلا رہی ہیں. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنا کلام عطا فرمائیے. محترمہ نگار بانو ناز کولکتہ انڈیا. صدر صاحب کی اجازت سے میرا سلام عرض ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صدر صاحب کی اجازت سے جی عطا کیجیے. جس کو میں نے صدا کے پاس صدا دل کے پاس جس کو میں نے دل کے پاس آواز آواز اتنی ٹھیک نہیں ہو رہی ہے. کنوے نہیں ہو رہی آواز. یہ آپ ہینڈ فری اتار دیجیے, اور آرام سے اطمینان کے ساتھ جو ہے صدا دل کے پاس ہو گیا ساحل کے پاس آیا کبھی نہ لوٹ کے منزل کے پاس آیا کبھی نہ لوٹ کے منزل کے پاس وہ دل بتا رہا تھا میرے دل کے پاس آیا کبھی نہ لوٹ کے منزل کے پاس وہ دل بتا رہا تھا میرے دل کے پاس. اور شعر دیکھیے کہ قسمیں ہماری جان کی کھاتے تھے صبح و شام, قسمیں ہماری جان کی وہ کھاتے تھے صبح و شام, وہ بھی کھڑے رہے میرے قاتل کے پاس. دوبارہ پڑھیے. کیا بڑی سچویشن میں ہماری جان کی وہ کھاتے تھے صبح و شام. اچھا, ہماری جان کی جو کھاتے تھے صبح و شام, وہ بھی کھڑے رہے میرے قاتل کے پاس. پار کرنے کی ہمت نہیں ہوئی, دریا کو پار کرنے کی ہمت نہیں ہوئی, کشتی کھڑی رہی میری ساحل کے پاس. بھائی اچھا ہے. وہ تو غزل سنا کے بہت دور ہو گیا, وہ تو غزل سنا کے بہت دور ہو گیا, ایک آگ لگ گئی دل بسمل کے پاس کے پاس اور اے ناز انقلاب زمانے کی خیر ہو, اے ناز انقلاب زمانے کی خیر ہو, کتنے خطیب آ گئے جاہل کے
इसको मैंने सदा दिल के पास, तूफान की नजर हो गया ताहिर के। बहुत शुक्रिया मोहब्बतों का। जी बहुत शुक्रिया मोहतरमा निगार बहन साहिबा, आपने खूबसूरत कलाम अता फरमाया। हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से जनाब असद अली राना साहब, जो आज बड़े स्टाइल में बैठे हैं, यूं लग रहा है जैसे अल्लामा इकबाल की रूह आपने हलूल कर गई है। क्या खूबसूरत स्टाइल राना असद अली साहब जो हैं ये उर्दू और पंजाबी के बहुत ही खूबसूरत शायर हैं। इनसे लाहौर में अक्सर प्रोग्राम्स में मुलाकात होती है और इनका हम कलाम सुनते हैं और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। जी मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपना कलाम अता फरमाइए जनाब राना असद अली साहब। और अहबाब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप तारफ कराते हुए थोड़ी सी दिक्कत तो महसूस होती है, लेकिन अगर आप अपना तारफ व्हाट्सएप पे मुझे भेज दें, जितने दोस्त हैं जिन्होंने भेज दिया वो ठीक है, जिन्होंने नहीं भेजा वो मुझे व्हाट्सएप पे अपना तारफ भेज दें, टाइप करके उर्दू में टाइपिंग व्हाट्सएप पे टाइप करके, और ज्यादा से ज्यादा वो टाइपिंग की 20 लाइनें हों तो मुझे तारफ कराने में जो आसानी होगी और चंद दिनों में मुझे बिल्कुल याद हो जाएगा। फिर मैं अनीस भाई 20 लाइनें तो खुतबा बन जाएगा। जी 20 लाइनें तो खुतबा बन जाएगा। अनीस भाई आपकी मोहब्बत का मशहूर हूँ। 20 लाइनें मेरा ख्याल है कि मुनासिब हैं, कम भी नहीं है और ज्यादा भी नहीं है। अगर अब हम आपसे जुबानी सुनेंगे। जी जी जब याद हो जाएंगे फिर आपसे सुनेंगे। जी ठीक है जी असद अली राना साहब। जी जी बिस्मिल्लाह। साहब सदर की इजाजत से गजल के गमो अंदोह में तकदीर मेरी, गमो अंदोह में तकदीर मेरी, यही जागीर है तकदीर मेरी। गमो अंदोह में तकदीर मेरी, यही जागीर है तकदीर मेरी। और दुरूने ज़ात बैठा है अज़ल से, दुरूने ज़ात बैठा है अज़ल से, वो करता क्यों नहीं तस्खीर मेरी। क्या बात है। शुक्रिया। दुरूने ज़ात बैठा है अज़ल से, वो करता क्यों नहीं तस्खीर मेरी। और मुझे मिलना है खुद से आईने में, मुझे मिलना है खुद से आईने में, मुझे करनी है अब तौकीर मेरी। क्या कहना। मुझे मिलना है खुद से आईने में, मुझे करनी है अब तौकीर मेरी। और मुझे खुशबू बना दो छू के अब तुम, मुझे खुशबू बना दो छू के अब तुम, के हो जाए जरा तशहीर मेरी। जी शुक्रिया। मुझे खुशबू बना दो छू के अब तुम, के हो जाए जरा तशहीर मेरी। और उसे मिलने के हरबे सोचता हूँ, मिलने के हरबे सोचता हूँ, रही नाकाम हर तदबीर मेरी। जी शुक्रिया। और है मेरे पास, जी शुक्रिया, है मेरे पास मोबाइल में उसकी, है मेरे पास मोबाइल में उसकी, और उसके पास है तस्वीर मेरी। तस्वीर मेरी क्या काम है, क्या है मेरे पास मोबाइल में उसकी, और उसके पास है तस्वीर मेरी। और मकता है कि मुझे मोहब्बत कच्चा धागा है असद तो, मोहब्बत कच्चा धागा है असद तो, न टूटे मुझसे क्यों जंजीर मेरी। मोहब्बत कच्चा धागा है असद तो, न टूटे मुझसे क्यों जंजीर मेरी। और गमो अंदोह में तकदीर मेरी, यही जागीर है तकदीर मेरी। आपकी खूबसूरत समातों का बहुत शुक्रिया। क्या इजाजत जी बहुत शुक्रिया जनाब राना असद अली साहब। लाहौरी से हमारे साथ मौजूद हैं जनाब तारिक कामरान साहब, बड़े मसरूफ आदमी हैं, सारा दिन ये
लोगों की रिपोर्टिंग करते हैं, खबरें इकट्ठी करते हैं, खबरें इकट्ठी करके ये फिर अपने इदारे में पहुंचाते हैं। फिर इन्होंने प्रेस क्लब में जाके महफिल जमानी होती है, वहां पे बैठते हैं, महफिल में दोस्तों के साथ गपशप लगाते हैं और फिर घर आ जाते हैं। जिस दिन मैं इनसे दरख्वास्त करता हूँ कि आज प्रोग्राम है तो ये जल्दी घर आ जाते हैं, तो आज ये 8 बजे से पहले अपने घर पहुंच गए, वरना अमूमन रात हो जाती है रास्ते में ही। और लाहौर के प्रेस क्लब का मंजर तो बहुत ही खूबसूरत है। गोल दायरा है प्रेस क्लब। उस गोल दायरे में प्रेस क्लब की बिल्डिंग मौजूद है और उसमें एक पहाड़ी बनाई गई है जिसे शिमला पहाड़ी का नाम दिया गया है। और शिमला पहाड़ी के ऊपर लोग रात को जाके बैठ जाते हैं। लोगों से प्रेस रिपोर्टर्स होते हैं, कैमरामैन होते हैं, और तो यहाँ पे जा नहीं सकता, तो वो लोग वहां जाके बैठ के चाय पीते हैं, खाना खाते हैं। तो बहुत ही वो मंजर है कि चारों तरफ से ट्रैफिक की लाइट्स नजर आ रही होती हैं, गाड़ियां गुजर रही होती हैं और ये बैठ के नजारा कर रहे होते हैं। जी तारक कामरान साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप मेरी दरख्वास्त पे तशरीफ लाए। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपना कलाम अता फरमाइए। और ये मुझे आज इंकशाफ हो रहा है कि ये भी राणे हैं, इन्होंने लिखा है तारक कामरान राणा, वरना मुझे पहले नहीं पता था। चलें एक और राणे का इजाफा हमारे दोस्तों की महफिल में। बल्कि हम तो राणा से हमेशा खौफजदा ही रहते हैं। जिन राणा के बारे में हमने जितनी बातें सुनी हैं वो बड़ी जो है ना वो दीदा से कम है और खौफनाक ज्यादा होती हैं। लेकिन आप तो अस्तिया है गजल से पहले दो शेर। अच्छा जी बिस्मिल्लाह। हकीकत का सफर क्यों है, हकीकत का सफर दुश्वार क्यों है, यहाँ हर कर दीवार क्यों। हकीकत का सफर दुश्वार क्यों है, यहाँ हर कदम दीवार क्यों है। ये मानना फूल चुनने जा रहे हो, ये मानना चुनने जा रहे हो, मगर ये हाथ में तलवार क्यों है। ये मानना फूल चुनने जा रहे हो, मगर ये हाथ तलवार। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। आवाजें भी आ रही है पीछे, एक पीछे भी आवाजें किसी की आ रही है। माइक ऑफ। तारक साहब आवाज आपकी साफ नहीं आ रही, जरा माइक के नजदीक हो जाइए। और जो आपके इर्द गिर्द आपकी फैमिली मुशायरा सुन रही है उन्हें कहीं खामोशी के साथ सुने, क्योंकि उनकी आवाजें बीच में आ रही है। दो शेर से पहले सुना रहा था, शायद दोबारा अर्ज करता हूँ। आपकी आवाज कम आ रही है। असल में तारक कामरान साहब वो घर से खाने वाले साफी हैं, इसलिए अगर इनकी आवाज कमजोरी से निकले। माइक से आवाजें आ रही है, वो भी देखिए अनीस भाई। उन्हीं के घर से आ रही, उन्हीं के रेस भाई जरा थोड़ा सा आवाजें देखिए, आवाजें आ रही हैं। हैदरी भाई जरा माइक जो है ना देखिए, आवाजें आ रही हैं आपकी तरफ से। जी 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 तारक साहब। सर मेरी आवाज आ रही है आप तक? अब कोई सूरत बनी है? आवाज आ रही है जनाब। मैं आपके लिए ना एक स्टैंड आइंदा लेके आऊंगा प्रेस क्लब में, आप उस स्टैंड पे मोबाइल रख के जो है ना वो प्रोग्राम कीजिएगा। फिर आप जो है ना ऐसे हिलें जुलेंगे नहीं, एक जगह पे बैठे रहेंगे। अब तो मेरा वादा हो गया, मैं आपके लिए गिफ्ट लाऊंगा। सर बहुत मेहरबानी सर। किया है हिसाब चाहते हैं, मौसमों का हिसाब चाहते हैं, कोई ताजा गुलाब चाहते हैं। मौसमों का हिसाब चाहते हैं, कोई ताजा गुलाब चाहते हैं। आंख वीरान होती जाती है, आंख वीरान होती जाती है, एक महकता सा ख्वाब चाहते हैं। आंख
महकता सफात चाहते, वाह वाह। और और क्या चाहते हैं आपसे हम, और क्या चाहते हैं आपसे हम, आपको ही जनाब चाहते हैं, और क्या चाहते हैं, और क्या चाहते हैं, आपको ही जनाब चाहते हैं। क्या करें हम बरक से अटके हैं, क्या करें हम बरक से अटके हैं, आप भी किताब चाहते हैं। क्या करें हम चाहते हैं, आप भी किताब चाहते हैं। सीधा सा एक सवाल है तारिक, सीधा सा एक सवाल है तारिक, और सीधा जवाब चाहते हैं। सीधा सा सवाल है तारिक, और सीधा जवाब चाहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। कोई ताजा गुलाब। जी बहुत शुक्रिया जनाब तारक कामरान साहब। हमारे साथ मौजूद हैं वैनकूवर कनाडा से जनाब दशमेश गिल फेरोज साहब। दशमेश गिल फेरोज साहब हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं और ये उर्दू और पंजाबी में शायरी करते हैं। ये उर्दू उतनी जानते हैं जितनी मैं गुरमुखी जानता हूँ। जब ये उर्दू लिखते हैं तो ये तो बहुत अच्छी लिख लेते हैं, लेकिन जब मैं गुरमुखी लिखता हूँ तो उसमें काफी गलतियां निकल आती हैं। दशमेश गिल फेरोज साहब जो हैं वो बहुत खूबसूरत लहजे में उर्दू की शायरी भी बहुत खूबसूरत करते हैं और पंजाबी शायरी खूबसूरत तो करते ही हैं। और अहबाब ज़िवकार, आज मैं तमाम अहबाब के सामने एक इंकशाफ करने जा रहा हूँ। हालांकि मुझे अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए, लेकिन आप मेरे तमाम दोस्त हैं इसलिए मैं अपनी खुशियां आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दशमेश गिल फेरोज साहब ने मेरी पंजाबी की किताब मन दी मिट्टी, उसमें एक इन्होंने तहरीर लिखी है। इन्होंने मुझे गुरमुखी में लिख के भेजी तो मैंने उसका पंजाबी में तर्जुमा कर लिया अपनी जुबान में। तो आपको बताने वाली बात ये है, शायद मैंने एक दो दोस्तों से शेयर की हो, दशमेश साहब से और शाद साहब से मैंने बात की है कि हमारा जो क्लासिकल अदब है पंजाबी, उसमें 8 गुरु हैं, 8 बाबे। हजरत बाबा फरीद गंज शकर, हजरत सुल्तान बाहू, हजरत बाबा फरीद और ये मियां मोहम्मद बख्श साहब, पीर फजल गुजराती और एक दो और हैं जो थोड़ी देर पे मुझे नाम याद नहीं आ रहे। उन्होंने जो शायरी की है उसको नाम दिया गया है अश्लोक। अश्लोक जो है वो गलतुल-आम है, लेकिन लफ्ज है श्लोक। श्लोक जो है वो हिंदी का संस्कृत का लफ्ज है, उसका मतलब है शाह लोग, फकीर लोग, बादशाह लोग। और जो ये बात इन्होंने औलियाए कराम ने, हमारे गुरुओं ने, बाबा गुरु नानक ने जो शायरी की है वो एक खास पैर में की है, जिसे हम दोहे कहते हैं पाकिस्तान वाले और हिंदुस्तान वाले उसे श्लोक कहते हैं। तो ये आज तक कोई किताब बाकायदा तौर पर छपी नहीं है। इसमें हजरत बाबा फरीद गंज शकर, भगत कबीर और हजरत बाबा गुरु नानक के श्लोक जो हैं वो मुख्तलिफ लोगों ने मुरतब किए हैं। मुरतब की हुई किताबें जो हैं इस पंजाबी अदब में मौजूद हैं, लेकिन बाकायदा किताब मौजूद नहीं। मुझे ये एजाज हासिल हो रहा है कि कल को मेरी किताब प्रेस में जा रही है, मन दी मिट्टी, और इसमें 740 श्लोक हैं और ये दुनिया अदब में, पंजाबी अदब में ये पहली किताब बनने जा रही है कि आज से पहले श्लोक की बाकायदा किताब कोई नहीं छपी। तो इसमें मुझे ये दुनिया अदब पंजाबी में पहली किताब बनने जा रही है कि आज से पहले पंजाबी में श्लोक की बाकायदा किताब कोई नहीं छपी। और दशमेश साहब ने इसमें अपना मजमून लिखा है। आप मेरे लिए दुआ कीजिए, कल सुबह इंशाल्लाह प्रेस पे चली जाएगी और 4-5 दिन में वो प्रिंट होकर मेरे पास आ जाएगी किताब। जी बहुत शुक्रिया जी। दशमेश गिल फेरोज साहब वैनकूवर में मौजूद हैं, वहाँ पे ये उर्दू और पंजाबी मुशायरों में शिरकत करते हैं। दोस्तों के दोस्त हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। जब ये ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू हुए तो इनसे राब्ता हुआ तो अक्सर जो है इनके साथ प्रोग्राम्स में शिरकत की। जी दशमेश गिल फेरोज साहब, आपसे गुजारिश है कि अपना कलाम अता फरमाइए। बहुत शुक्रिया भाई आपका, बड़ी मोहब्बत आपकी, आपने दावत दी। आप सबकी इजाजत से गजल से पहले 2 शेर अर्ज करने जा रहा हूँ।
और इसकी है कि आवाज आ रही है? हमारा जरा नेट का मसला है, देख सकते जी 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 मैं जी अनिल भाई, मेरे यहाँ भी नेट का मसला है। और ये आवाज जी। भी बंद कीजिए प्लीज। जी दशमेश साहब आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए। जी ये आवाज भी हाँ बंद 10 कीजिए। मिनट इंतजार कीजिए। जी मुमताज मुनव्वर साहिबा, डॉक्टर मुमताज मुनव्वर साहिबा दुनिया अदब में किसी तारफ की मोहताज नहीं। आप PhD हैं और आपकी बहुत सी किताबें छप चुकी हैं, रेडियो और टीवी पे आपके प्रोग्राम्स चलते हैं और आपको बहुत से आलमी अवार्ड और हिंदुस्तान में मौजूद अवार्ड मिल चुके हैं और मुशायरों की जान है। जब भी आपको दावत दी जाती है आप खंदा पेशानी के साथ खुश दिली के साथ प्रोग्राम में शिरकत करती हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपना कलाम अता फरमाइए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया। एक तो यहाँ बारिश बहुत हो रही है और मुझे वायरल ने जकड़ रखा है तो मैं अपना कलाम तहत में पढ़ रही हूँ सदर साहब की इजाजत से। शाह साहब इजाजत है? जी अता की मतलब ये कभी धूप तेज है। नहीं, यहाँ एक हफ्ते से बहुत जोरों की बारिश हो रही है, बल्कि अखबार में तो आया था कि 80 साल का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया पूना की बारिश। जी बहुत मसला पेश करती हूँ। जी जी आह जो बेबस की लगे इंस भी जल जाए वहीं। आह जो बेबस की लगे इंस भी जल जाए वहीं। इंस ही क्या चीज है पत्थर भी पिघल जाए वहीं। आह जो बेबस की लगे इंस भी जल जाए वहीं। इंस ही क्या चीज है पत्थर भी पिघल जाए वहीं। इंस ही क्या चीज है पत्थर भी पिघल जाए वहीं। और भूल तो इंसान से होती है चलो मान लिया। भूल तो इंसान से होती है चलो मान लिया। फर्ज है महसूस करे और संभल जाए वही। फर्ज है महसूस करे और संभल जाए वही। और ये शेर भी देखिए कि जब था वो चिलमन में छुपा, जब था वो चिलमन में छुपा जब्त रहा दिल पे मेरे। जब था वो चिलमन में छुपा जब्त रहा दिल पे मेरे। हुस्न का दीदार हुआ। ये आवाज आ रही है? जी आ रही है। आवाजें आ रही है पीछे। आवाज आ रही है। जी जब था वो चिलमन में छुपा जब्त रहा दिल पे मेरे। हुस्न का दीदार हुआ दिल तो मचल जाए वहीं। हुस्न का दीदार हुआ। जी बहुत शुक्रिया। जब था वो चिलमन में छुपा जब्त रहा दिल पे मेरे। हुस्न का दीदार हुआ दिल तो मचल जाए वहीं। हुस्न का दीदार हुआ दिल तो मचल जाए वहीं। और छोड़ चुके उसकी गली फिर भी सुकून दिल को नहीं। उसकी गली फिर भी सुकून दिल को नहीं। चल के वहीं देख तो शायद के संभल जाए वहीं। वाह बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया। छोड़ चुके उसकी गली फिर भी सुकून दिल को नहीं। चल के वहीं देख तो शायद के संभल जाए वहीं। चल के वहीं देख तो शायद के संभल जाए वहीं। और ये शेर भी देखिए कि मौत का एक दिन तो है तय। मौत का एक दिन तो है तय और कहाँ मौत का एक दिन तो है तय और कहाँ होगी वो भी। कुछ न चले जोर तेरा लेके अजल जाए वहीं। कुछ न चले जोर तेरा लेके अजल जाए वहीं। और आखिरी शेर के भी पेचीदा रहे रास्ते जीवन के मगर। कितने भी पेचीदा रहे रास्ते जीवन के मगर। साथ हो गरमा की दुआ राह निकल जाए वही। साथ हो गरमा दुआ। बहुत शुक्रिया। कितने भी पेचीदा रहे रास्ते जीवन के मगर। साथ हो गरमा की दुआ राह निकल जाए वही। आह जो बेबस की लगे इंस भी जल जाए वहीं। इंस ही क्या चीज है
पत्थर भी पिघल जाए वहीं, इंच ही की चीज है पत्थर भी पिघल जाए वहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत क्या बात नवाजी, है, क्या बात, बहुत नवाजी, बहुत शुक्रिया। बहुत खूब। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या कहें? सॉरी फिरोज साहब, आपकी बारी मैंने ले ली। रईस आजम साहब भी कह रहे थे जल्दी के लिए। कहाँ गए अनीस साहब? मनीष भाई नजर नहीं आ रहे हैं। आइए, अब मैं बिहार से बजमाने सुखन की जो है ना एडमिन हमारे नदीम अहमद साहब मुर्सनवी आज की महफिल में शिरकत में उन्हें इस शेर से दावत सुखन दे रहा हूँ कि आब नीसा जो बरसता है समुंदर पे कहीं उसके कतरों से ही बनता है सदत में मोती। तो आइए नदीम अहमद साहब अपनी गजल पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम की इजाजत से जरा बता क्यों आप कई किताबों के खालिक हैं और इल्म व उरूज के बहुत माहिर हैं। 52 वज़न पर जो है ना ये रुबाई का है 52। आइए जी, जो थी बंजर जमीन उसको गुलिस्तान कर दिया हमने। कैमरा ऊपर कीजिए, कैमरा नजर सामने कीजिए, कर दिया हमने। चेहरा पूरा नजर नहीं आ रहा। चेहरा आधा नजर आ रहा। हाँ अब आ रहा नजर आ। जो थी बंजर जमीन उसको गुलिस्तान कर दिया हमने, जो कांटे थे वो गुल का सबिस्तान कर दिया हमने। हमारे जज्बे तालीम का ये भी नतीजा है, हमारे जज्बे तालीम का ये भी नतीजा है, जो सेहरा था उसे मिसरे खयाबां कर दिया हमने। हमारे नौजवान गुमराह थे मगरिब की चालों से, हमारे नौजवान गुमराह थे मगरिब की चालों से, सुना कर कलमा हक ताजा कर दिया, कलमा हक ताजा ईमा कर दिया हमने। क्या बात, सुनाकर कलमा हक ताजा ईमा कर दिया हमने। जिहाद के अंधेरों को मिटाने के इरादे से, जिहाद के अंधेरों को मिटाने के इरादे से, जहां में इल्म का रोशन चरागां कर दिया हमने। जलाकर हौसलों का दीप राहे जिंदगानी में, जलाकर हौसलों का दीप राहे जिंदगानी में, अलम की शाम को सुबह दरख्शां कर दिया हमने। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। दोबारा पढ़िएगा, दोबारा पढ़िएगा। जलाकर हौसलों का दीप राहे जिंदगानी में, हौसलों का शाम को सुबह दरख्शां कर दिया हमने। क्या क्या शुक्रिया शुक्रिया। तुम्हारी शख्सियत सैराब कर देती है प्यासों को, तुम्हारी शख्सियत सैराब कर देती है प्यासों को, तुम उतरे दिल को बयाबां कर दिया हमने। तुम उतरे दिल में जब दिल को बयाबां कर दिया हमने। बनाकर आयना शो अपने ऐ नदीम असर, बनाकर आयना शो को अपने ऐ नदीम असर, रमूदे जिंदगानी को नमाया कर दिया हमने। उसको गुलिस्तां कर दिया हमने, जो कांटे थे उन्हें गुल का शबिस्तां कर दिया। शुक्रिया। अभी आप अहमद नदीम साहब से जो है ना गजल समाप्त फरमा रहे थे। मैं अब दावत सुखन दे रहा और रेहान अमजद मुराद साहब को इस शेर के साथ कि वो किसी की अंजुमन हो, वो किसी की बादशाही, यही बागपन रहेगा, यही अपनी कच कुलाई।
तो आइए शेर के साथ अमजद रेहान मुराद साहब। रहमान रहमान अमजद मुराद। तो गजल से पहले 2 शेर। इरशाद। शाम हुई तो अपने घर तक जाने को, वाह शाम हुई तो अपने घर तक जाने को, मैंने तन्हाई का दामन थाम लिया, वाह मैंने तन्हाई का दामन थाम लिया, दोस्त समझकर जिसके घर ठहरा था मुराद, दोस्त समझकर जिसके घर ठहरा था मुराद, उसने मुझको कत्ल किया इनाम लिया। दोस्त समझकर जिसके घर ठहरा था मुराद, उसने मुझको कत्ल किया इनाम लिया। और गजल के चंद इशारे, मैंने तो उससे आज तक गुफ्तगू न की, वाह मैंने तो उससे आज तक गुफ्तगू न की, जब तक मेरे ख्याल में मेरी जुस्तजू न की, क्या बात है। जब तक मेरे ख्याल में मेरी जुस्तजू न की, जब तक तुम्हारे दीद के मंजर नहीं खुले, वाह जब तक तुम्हारी दीद के मंजर नहीं धुले, आंखों ने अपने आप से भी गुफ्तगू न की, क्या बात जब तक तुम्हारी दीद के मंजर नहीं धुले, आंखों ने अपने आप से भी गुफ्तगू न की, कदमों पे ये निशान तो मेरे ही हैं मगर, कदमों पे ये निशान तो मेरे ही हैं मगर, मैंने कभी आवाज़ ये खूबरू न की, वाह मैंने कभी आवाज़ ये खूबरू न की, तेरी कसम है तुझसे सच कह रहा हूँ मैं, तेरी कसम है तुझसे सच कह रहा हूँ मैं, खुशबू की बात मैंने कभी कूबकू न की, क्या बात है। वाह वाह। खुशबू की बात मैंने कभी कूबकू न की, वो चाहता था मुनफरिद मुझे दोनों जहान में, वो चाहता था मुनफरिद मुझे दोनों जहान में, यूं उसने कोई सूरत मेरे हू बहू न की, यूं उसने कोई सूरत मेरे हू बहू न की, मैं एहतराम देता हूँ चश्मे फरात को, मैं एहतराम देता हूँ चश्मे फरात को, जिसने खराम मस्ती कोई आबजू न की, क्या बात बहुत मैं एहतराम देता हूँ चश्मे फरात को, जिसने खराम मस्ती कोई आबजू न की, और मैं जानता हूँ सिलसिले परवाज के मुराद, मैं जानता हूँ सिलसिले परवाज के मुराद, मैं जानता हूँ सिलसिले परवाज के मुराद, यूं बात तुझने कभी बेवजू न की। अच्छा है। बहुत उम्दा मुरस्सा कलाम अभी आपके सामने रेहान अमजद मुराद साहब पेश कर रहे थे। अब मैं एक गरीब शायर रईस आजम हैदी खुद को पेश कर रहा हूँ। हो सकता है मेरा नेट कब चला जाए। इजाजत है फरूक साहब, अता कीजिए। अता हूँ पता कीजिए जनाब रईसा पता कीजिए। जी मैं गरीब आदमी हूँ भाई।
नाम हमारे वाले रख दिया। रईस ही नहीं, आजम भी है। आप दिल के तो हरगिज नहीं है, आप आदम। जी शुक्रिया। रईस भी है, आजम भी है। तो मतलब पेश खिदमत समात फरमाए। जी अता की। मोती को देख अहले खिरद की निगाह से, अच्छा मोती को देख अहले खिरद की निगाह से, आवाज आ रही? आवाज आ रही है। क्यों देखता है उसको, आवाज गई आपकी। भी नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही। दूसरी कुछ आवाजें आ रही है मगर उनकी नहीं आ रही। आपने दाद है तो दे दीजिए आप दाद, वरना आपकी आवाज नहीं आ रही। रईस भाई आपकी आवाज नहीं आ रही। उसके मवासिलाती निजाम जो है वो शुरू से ही कुछ थोड़ा सा तातुल का शिकार है। जी आज शोरा के साथ नजर भी नहीं आ रहे। है नहीं, कैमरे के सामने तो है। नाम भी नहीं आ रहा, पहले तो नाम आ रहा। चलिए, वो तो नाज़िम के फराइज भी अंजाम दे रहे थे। मेरे ख्याल में सरवर साहब से मैं गुजारिश करता हूँ। मैं जनाब आपकी इजाजत से मैं मुशायरे को आगे बढ़ाते हुए जनाब अब्दुल ताहिर साहब से मुल्तमिस हूँ कि तशरीफ लाएं और आज के मुशायरे में अपना कलाम अता फरमाएं। जनाब ताहिर अब्दुल साहब गजल के चंद अशआर। जी अता कीजिए जनाब, अता कीजिए। सो हम तय मकामे रजा कर रहे हैं। वाह वाह। तो हम तय मकामे रजा कर रहे हैं, किसी दिल जले का भला कर रहे हैं। क्या बात, क्या बात है। दुआ गो हूँ उनके लिए हर घड़ी में, दुआ गो हूँ उनके लिए हर घड़ी में, जो तेरे लिए बद्दुआ कर रहे हैं। क्या बात है। दुआ गो हूँ उनके लिए हर घड़ी में, जो तेरे लिए बद्दुआ कर रहे हैं। मोहब्बत के आंसू थे ताबिंदा गौहर, मोहब्बत के आंसू थे ताबिंदा गौहर, जिन्हें खाक में वो मिला कर रहे हैं। जी माले मोहब्बत न सोचा था हमने, माले मोहब्बत न सोचा था हमने, मगर अब किसी का गिला कर रहे हैं। क्या इश्क हमने किया, इश्क ने हमको मजबूर इतना, किया इश्क ने हमको मजबूर इतना, कि एक बेवफा से वफा कर रहे हैं। अच्छा, क्या बात है। किया इश्क ने हमको मजबूर इतना, कि एक बेवफा से वफा कर रहे हैं। हमें नाज है उसके लुत्फो करम पर, हमें नाज है उसके लुत्फो करम पर, इसी वास्ते हम खता कर रहे हैं। और खुदा ने है दी जिनको तौफीको हिम्मत, खुदा ने है दी जिनको तौफीको हिम्मत, वो दिन रात मुझसे जफा कर रहे हैं। क्या बात। मुख्तार जी, मोहब्बत के मारे मोहब्बत से ताहिर, मोहब्बत के मारे मोहब्बत से ताहिर, नमाजे मोहब्बत अदा कर रहे हैं। अच्छा,
फिर पढ़िएगा फिर पढ़िएगा फिर पढ़िए। मोहब्बत के मारे मोहब्बत से ताहिर नमाज और मोहब्बत अदा कर रहे हैं। बहुत खूब। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। गुलस्ता कलाम अता फरमाए जनाब ताहिर अब्दाल साहब। और मैं इससे पहले कि दीगर शुरा को दावत सुखन दूं, बाहैसियत नाज़िम इशारा अपनी गजल के चंद शेर सुनाता हूँ। साहिब सदर की जायज साहब की अता कीजिए। ख्याल यार मेरे दिल में बार बार आया, वाह, ख्याल यार मेरे दिल में बार बार आया, किसी तरह ना मुझे एक पल करार आया। क्या क्या वाह, क्या वाह वाह, ख्याल यार मेरे दिल में बार बार आया, किसी तरह न मुझे एक पल करार आया। और शदीद तर है गुलिस्तां में हफ्स का मौसम, शदीद तर है गुलिस्तां में हफ्स का मौसम, हवा का एक भी झोंका न मुश्किबार आया, हवा का एक भी झोंका न मुश्किबार आया। और यही तो मेरी मोहब्बत की तरहदारी है, यही तो मेरी मोहब्बत की तरहदारी है, तेरा ख्याल भी आया तो बावकार आया। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलो साहब फिर कहिए वाह वाह। यही तो मेरी मोहब्बत की तरहदारी है, तेरा ख्याल भी आया तो बावकार आया। क्या और बहार सामा फजाओं में ऐसा लगता है, बहार सामा फजाओं में ऐसा लगता है, खजा का रूप लिए मौसमे बहार आया, खजा का रूप लिए मौसमे बहार आया। और उदास लम्हों ने घेरा हुआ है मुद्दत से, उदास लम्हों ने घेरा हुआ है मुद्दत से, अलग ये बात कि दिल तुझ पे मैं निसार आया। और शेर देखिए, मैं बन चुका हूँ कहानी फसाना और किस्सा, मैं बन चुका हूँ कहानी फसाना और किस्सा, मेरी वफाओं का अब तुझको एतबार आया। मैं बन चुका हूँ कहानी फसाना और किस्सा, मेरी वफाओं का अब तुझको एतबार आया। न जाने कैसा तमाशा है ये खुदा जाने, न जाने कैसा तमाशा है ये खुदा जाने, जो तेरी बज़्म से निकला वो अश्क बार आया, जो तेरी बज़्म से निकला वो अश्क बार आया। और किसी से मुझको गिला ही नहीं रहा सरवर, किसी से मुझको गिला ही नहीं रहा सरवर, कठन का वक्त जो मुझ पर वो मैं गुजार आया। ख्याल यार मेरे दिल में बार बार आया, किसी तरह ना मुझे एक पल करार आया। सर्व सम्मानी को समाज का बहुत शुक्रिया। और अब मैं निहायत साहब मुफ्ती में सुनाबे दशमेश गिल साहब से कि तशरीफ लाएं और आज के मुशायरे में अपना कलाम अता फरमाएं। जी गजल से पहले दो शेर एक गजल के हैं कि अर्ज किया है कि खुद से तन्हाई में गर बात न की जाएगी, वाह वाह, खुद से तन्हाई में गर बात न की जाएगी, मुझको डर है मेरी आवाज चली जाएगी। क्या कहने, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। खुद से तन्हाई में, शुक्रिया, खुद से तन्हाई में गर बात न की जाएगी, मुझको डर है मेरी आवाज चली जाएगी। और शेर है कि सर्दियों में तेरी यादों के हंसी धागों से, सर्दियों में तेरी यादों के हंसी धागों से धूप में बैठकर एक शाल बुनी जाएगी। क्या बात है। सर्दियों में तेरी यादों के हंसी धागों से धूप में बैठकर एक शाल बुनी जाएगी। एक गजल है 5-6 शेर उसके के अर्ज किया है कि मिली है बाढ़ आने की खबर, तुम तैरना सीखो। मिली है बाढ़ आने की खबर,
तुम तैरना सीखो, अभी तो दूर है पानी मगर तुम तैरना सीखो, और अभी से तैरना सीखो, कहीं ऐसा ना हो एक दिन, अभी से तैरना सीखो, कहीं ऐसा ना हो एक दिन, उधर सैलाब आ जाए इधर तुम तैरना सीखो। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। और शेर है कि किनारे पर बसे बच्चों सुनो तुमको बड़े होकर, किनारे पर बसे बच्चों सुनो तुमको बड़े होकर, अगर है सीखना कोई हुनर तो तैरना सीखो। क्या कहने, क्या कहने। किनारे पर बसे बच्चों सुनो तुमको बड़े होकर, अगर है सीखना कोई हुनर तुम तैरना सीखो। और एक शेर के चलो अब तुम जरा सा डूबना भी सीख ही डालो, चलो अब तुम जरा सा डूबना भी सीख ही डालो, जरूरी तो नहीं बस उम्र भर तुम तैरना सीखो। और शेर है कि खुदा था ना खुदा था कौन था जिसने कहा मुझसे, खुदा था ना खुदा था कौन था जिसने कहा मुझसे, मैं रखूंगा तला तुम पर नजर तुम तैरना सीखो। बहुत क्या बात। शुक्रिया। और आखिरी शेर के नदी में डूबने से कबल बाबा ने कहा मुझसे, वाह, नदी में डूबने से कबल बाबा ने कहा मुझसे, न सीखा तैरना मैंने मगर तुम तैरना सीखो। वाह, क्या कहने, क्या कहने। अभी से तैरना सीखो कहीं ऐसा ना हो एक दिन, उधर सैलाब आ जाए उधर तुम तैरना सीखो। बहुत ही खूबसूरत गजल था हमारे जनाब रमेश गिल साहब। और अब मैं निहायत अदब के साथ मुमकिन हूँ जनाब अख्तर चीमा साहब से कि तशरीफ लाएं और आज के मुशायरे में अपना मुझे बुला लें, नहीं तो फिर मेरा नेट चला जाएगा। मुझे बुला जी रईस आजम हैदरी साहब, जी जी अता कीजिए, अता कीजिए। अख्तर भाई इसके बाद आप। हाँ अभी उधार लिया हूँ। जी हाँ, जी हाँ, अता कीजिए। किसी दूसरे मोबाइल से जोड़ा हूँ कनेक्शन। अच्छा अच्छा जनाब सदर के इजाजत से मैं गजल का मतलब पेश कर रहा हूँ, समाप्त फरमाया। जी जी अता कीजिए। मोती को देख अहले खिरद की निगाह से, मोती को देख अहले खिरद की निगाह से, क्यों देखता है उसको हसद की निगाह से। सही दुरुस्त। नवाज क्यों देखता है उसको हसद की निगाह से, मोती को देख अहले खिरद की निगाह से। और ये शेर तामीर में रुकावटें होती नहीं कि जब, तामीर में रुकावटें होती नहीं कि जब बुनियाद रखी जाए मदद की निगाह से। बुनियाद रखी जाए मदद की निगाह से। नवाज देखिए अख्तर भाई शेर देखिए, जब खैर और शर की तमीज आपको न हो, जब खैर और शर की तमीज आपको न हो,
کیا دیکھتے ہیں آپ سند کی نگاہ سے، کیا بات ہے، واہ، کیا دیکھتے ہیں آپ سند کی نگاہ سے. اور یہ شعر توجہ چاہوں گا مشتاق صاحب. جی ارشاد دنیا یہ ایک کھیل تماشا لگے گی پھر، واہ واہ واہ، دنیا یہ ایک کھیل تماشا لگے گی پھر، دیکھیں جو آپ اہل لحد کی نگاہ سے. اور یہ شعر حقدار ہے اگر تو اسے حق دیا کریں، حقدار ہے اگر تو اسے حق دیا کریں، دیکھیں کسی کو آپ نرد کی نگاہ سے. واہ 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 بے شک. نواز. اور یہ آخری شعر سماعت فرما دیں. سونے کا اس کو آپ نوالا کھلائیے، سونے کا اس کو آپ نوالا کھلائیے، پر دیکھیے ضرور اسد کی نگاہ سے. بہت اچھا. واہ واہ. اور یہ مقطع کا شعر سماعت فرمائے. چاہے امیر شہر ہو یا ہو غریب شہر، کیا بات. چاہے امیر شہر ہو یا ہو غریب شہر، دیکھیں رئیس سب کو عہد کی نگاہ سے، دیکھیں رئیس سب کو عہد کی نگاہ سے، موتی کو دیکھ اہل خرد کی نگاہ سے، کیوں دیکھتا ہے اس کو حسد کی نگاہ سے. بہت خوب. ہاں بھائی سرور صاحب. سرور صاحب سرور صاحب میرا خیال ہے نہیں. جی آگے جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی ہاں. حقدار ہے اگر تو اسے حق دیا کریں، دیکھیں کسی کو آپ مدد کی نگاہ سے. مرصع کلام عطا فرمائے جناب رئیس اعظم حیدری صاحب. اور اب میں نہایت ابھی صاحب ملتمس ہوں جناب اختر چیمہ صاحب سے کہ تشریف لائیں اور آج کے مشاعرے میں اپنا کلام عطا فرمائیں. جناب اختر چیمہ صاحب. شکریہ جی. تمام احباب کی خدمت میں دستباز بہت شکریہ. غزل کے چند اشعار مقدار ہے کہ اس لیے آنکھ حسینوں سے چرائی نہ گئی، لیے آنکھ حسینوں سے چرائی نہ گئی، بات دل کی کبھی چہرے سے چھپائی نہ گئی.
نہیں دوبارہ پڑھیے نہیں پہنچا. इसलिए आंख हसीनों से चुराई न गई, बात दिल की कभी चेहरे से छुपाई न गई. बात दिल की कभी. अच्छा वो इमारत कभी तामीर नहीं हो सकती, बहुत खूब. इमारत कभी तामीर नहीं हो सकती, जिसकी बुनियाद सलीके से उठाई न गई. अच्छा यूनिवर्सल फैक्ट. बहुत शुक्रिया. वो इमारत कभी तामीर नहीं हो सकती, जिसकी बुनियाद सलीके से उठाई न गई. कैसे मुमकिन है तराशे तेरे पैकर के खतूत, कैसे मुमकिन है तराशे तेरे पैकर के खतूत, तेरी तस्वीर मुसव्वर से बनाई न गई. अच्छा है. कैसे मुमकिन है तराशे तेरे पैकर के खतूत, तेरी तस्वीर मुसव्वर से बनाई न गई. हमने इजहारे मोहब्बत का तकल्लुफ न किया, हमने इजहारे मोहब्बत का तकल्लुफ न किया, आतिशे इश्क मगर फिर भी छुपाई न गई. हमको बेलोस मोहब्बत की तलब मार गई, हमको बेलोस मोहब्बत की तलब मार गई, आंख कम ज़र्फ हसीनों से लड़ाई न गई. हमको बेलोस मोहब्बत की तलब मार गई, आंख कम ज़र्फ हसीनों से लड़ाई न गई. और रात सरबस्ता रहे अहले सितम के अक्सर, रात सरबस्ता रहे अहले सितम के अक्सर, गर्द तारीख के चेहरे से हटाई न गई. अच्छा चीमा साहब बहुत खूब. बहुत शुक्रिया. रात सरबस्ता रहे अहले सितम के अक्सर, गर्द तारीख के चेहरे से हटाई न गई. भरे शहर में तन्हा है तो हैरत कैसी, हर भरे शहर में तन्हा है तो हैरत कैसी, हमसे कम ज़र्फ जमाने से आई न गई. और उम्र भर कितने हसीनों से शनासाई रही, उम्र भर हसीनों से शनासाई रही, आतिशे कल्बो जिगर फिर भी बुझाई न गई. अरे वाह कहने में तो आपने रवानी से पढ़ दिया, मगर ये बड़ा काम किया है आपने भाई. दोबारा पढ़िए. बहुत खूब. उम्र भर कितने हसीनों से शनासाई रही. बहुत शुक्रिया. उम्र भर कितने हसीनों से शनासाई रही, आतिशे कल्बो जिगर फिर भी बुझाई न गई. फैक्ट बिल्कुल. नित नए यारों ने इल्जाम लगाकर देखा, नित नए यारों ने इल्जाम लगाकर देखा, हस्बे मंसूबा मगर बात बनाई न गई. हस्बे मंसूबा. अच्छा है. नित नए यारों ने इल्जाम लगाकर देखा, अच्छा है. हस्बे मंसूबा मगर बात बनाई न गई. और मकसद है कि चाहते थे कि करें खुद को नुमाया अख्तर, चाहते थे कि करें खुद को नुमाया अख्तर, दोस्तों से मेरी दस्तार गड़ाई न गई. चाहते थे कि करें खुद को नुमाया अख्तर, दोस्तों से मेरी दस्तार गड़ाई न गई. इसलिए हसीनों से चुराई न गई, बात दिल की कभी चेहरे से छुपाई नहीं. बहुत शुक्रिया. क्या कहने. कैसे मुमकिन है तराशे तेरे पैकर के खतूत, तेरी तस्वीर मुसव्विर से बनाई न गई.
बहुत खूबसूरत कलाम अता फरमाया है जनाब चीमा का। और अब मैं मुल्तज़िम हूँ आज के मेहमान खुसूसी जिन्होंने इब्तिदा में हमें नाते रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाई थी जनाब इस्लाम शिकारपुरी साहब से कि तशरीफ लाएं और आज के मुशायरे में अपना कलाम अता। बहुत बहुत शुक्रिया नवाजिश। जालिम के कुछ तो खून से अमा हो तो किस तरह, जालिम के कुछ तो खून से अमा हो तो किस तरह, कि दास्ताने जुल्म बयां हो तो किस तरह। जालिम के कुछ तो खून से अमा हो तो किस तरह, ये दास्ताने जुल्म बयां हो तो किस तरह। हमराह गम के काफिले रोजे अजल से हैं, हमराह गम के काफिले रोजे अजल से हैं, इंसान की खत्म आहो फुगा हो तो किस तरह, इंसान की खत्म आहो फुगा हो तो किस तरह। शेर देखिए, मुंसिफ बिके हुए हैं तो इंसाफ क्या मिले, मुंसिफ बिके हुए हैं इंसाफ क्या मिले, तामीर फिर निजामे जहां हो तो किस तरह। मुंसिफ बिके हुए हैं तो इंसाफ फिर क्या मिले, तामीर फिर निजामे जहां हो तो किस तरह। और शेर देखिए, मिल्लत ये सो गई है जो बेदार थी कभी, मिल्लत ये सो गई है जो बेदार थी कभी, बातिल न अपना दुश्मने जां हो तो किस तरह। मिल्लत ये सो गई है जो बेदार थी कभी, बातिल न अपना दुश्मनी जां हो तो किस तरह। और जिनका अमल नहीं कोई उक़बा के वास्ते, जिनका अमल नहीं कोई उक़बा के वास्ते, जन्नत में उनका अपना मकान हो तो किस तरह, जन्नत में उनका अपना मकान हो तो किस तरह। और दारा हो जम हो या हो सिकंदर सा बादशाह, दारा हो जम हो या हो सिकंदर सा बादशाह, बाकी यहाँ किसी का निशान हो तो किस तरह, बाकी यहाँ किसी का निशान हो तो किस तरह। और मक्ता समात फरमाए, इस्लाम जिंदगी तो मुसीबत का नाम है, इस्लाम जिंदगी तो मुसीबत का नाम है, तुझको सुकून नसीब यहाँ हो तो किस तरह। जालिम के कुछ तो खून से अमा हो तो किस तरह, ये दास्ताने जुल्म बयां हो तो किस तरह। बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहते, जालिम के कुछ तो खून से अमा हो तो किस तरह, ये दास्ताने जुल्म बयां हो तो किस तरह। मुंसिफ बिके हुए हैं तो इंसाफ क्या मिले, तामीर फिर निजाम जहां हो तो किस तरह। खूबसूरत थे जनाब इस्लाम शिकारपुरी साहब हमारे आज के मेहमान से। और अब मैं जिस शख्स को दावत दे रहा हूँ उसके दो शेर देखिए। देखो हर एक जवाल से आगे की सोचना, देखो हर एक जवाल से आगे की सोचना, जब सोचना कमाल से आगे की सोचना, तकदीर के सितारों की मत करना पैरवी, हाथों पे फैले जाल से आगे की सोचना। मैं दावत समझ दे रहा हूँ साल के खालिक जनाब फरूख ज़िया मुश्ताक साहब से कि तशरीफ लाएं और आज के मुशायरे में अपना कलाम अता जनाब फरूख ज़िया साहब। क्या कहना जनाब शोरा यहाँ तक अपनी तकलीफ नहीं बनाते। जी क्या भाई जी अदा कीजिए। मेरे पैकर तो हो अता पत्थर, मेरे पैकर तो हो अता पत्थर, आईना हो जरा उठा पत्थर। क्या कहने, आईना हूँ जरा उठा पत्थर, मेरी आंखों में मुंजबिदां, मेरी आंखों में मुंजबिदां आंसू, मेरे होठों पे है आजकल ये मोहब्बत का बस खुलासा है, ये मोहब्बत का बस खुलासा है, इब्तिदा फूल इंतहा पत्थर। वाह वाह
मेरे पाँव में जा बजा छाले, मेरे पाँव में जा बजा छाले, मेरी राहों जा बजा पत्थर। आज कहता हूँ कल तक दिल मेरा धड़कता था, क्या कहने, में हो गया पत्थर। बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बात, वाह। दिल मेरा धड़कता था, आज किस काम में हो गया पत्थर। अपना समझ फरमाइए, मुझको आता नहीं यकीन पर, मुझको आता नहीं यकीन पर, मेरी हालत से रो दिया पत्थर। मेरे पैकर था पत्थर, आई ना हो जरा उठा पत्थर। और क्या कहने, मेरी आंखों में मुंजमद आंसू, मेरे होंठों पे है दुआ पत्थर, मेरे पाँव में जा बजा छाले, मेरी राहों में जा बजा पत्थर। मुरस्सा कलाम अता मुश्ताक साहब। और अब आखिर में मैं चलता हूँ हमारे आज के साहिब सदर जनाब शुजाउद्दीन शाह साहब की तरफ। फरमाते हैं, कमाल ये नहीं तस्वीर तू बनाता है, कमाल ये है कि आईना मुस्कुराता है, मेरे खलूस से चाहत से खेलने वाले, बता तू कैसे मेरा नाम भूल जाता है। शुजा भाई मैं क्या करूं, मुझे अशारी बहुत पसंद है तो वही मुझे जबानी याद हो। अच्छा मैं आपको मैं कुछ और भेज दूंगा आपको। जी जो अपने किताबे आलिया से भी नवाजेंगे। और जी सरवर साहब, किताबे आलिया की तो यहाँ गुंजाइश नहीं है क्योंकि सारे आलिया लोग जो है वो तो चले गए। तो हाँ जी, मैं कुछ मारूजात हैं वो मैं दोबारा उनका यादा करना चाहता हूँ। बात यही है कि ये जो मुशायरे हैं ये लोगों ने बड़ी मेहनत से, बहुत कोशिश से और बहुत पे दर पे अपनी काविशों से लोगों ने ये एहतमाम किया कि ये मुशायरे जो हैं वो किसी तरह से रिवायत से करीब हो जाए और ज़मीनी मुशायरे जिस तरह से हुआ करते थे उनके करीब आ जाए। तो इसमें किसी हद तक बहुत से लोग कामयाब भी हुए, लेकिन मैंने अभी आज ये महसूस किया है कि ये मवासलाती राब्ते की दुश्वारियां और उसकी खामियां तो अपनी जगह, लेकिन मैं ये बात महसूस कर रहा हूँ कि लोग जो हैं बहुत चुनिंदा लोग भी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो आमतौर पर चाहे आप कैसा ही फॉर्मेट रखें, अगर आप ये रखें कि सीनियर शोरा को पहले पढ़ाना है तब भी वो चले जाएंगे, अगर आप ये रखें कि साहब जूनियर्स को पहले पढ़ाना है और बाद में सदर का एहतमाम करना है और सदर को और मेहमानाने एजाज को बाद में पढ़ाया जाए तब भी वो बीच में निकल जाएंगे। तो इसमें 2-3 मुशायरे जो कुछ जगहों पर ऐसे हो रहे हैं, जैसे नसीम सैयद साहिबा गालिब लाइब्रेरी के थ्रू कनाडा से एहतमाम करती हैं, अमरोहा फाउंडेशन के मुशायरे हैं, उसमें वो ये कंसर्ट लेते हैं कि आप मुशायरे में मौजूद रहेंगे, चाहे उसका दौरानिया 1.5 घंटे हो या 2 घंटे हो। अच्छा, ये कोई ऐसी बड़ी पाबंदी नहीं है, इसको सब लोग आसानी से बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन बात यह कि अगर आप अदब की खिदमत का जज्बा लेके आएंगे और मुशायरे को वाकई एक मजलिसी एक एजाज के तौर पर आप उसमें शिरकत करना चाहते हैं, तो ये थोड़ी बहुत जो पाबंदियां हैं ये आपको बर्दाश्त करनी चाहिए। तो मेरा ख्याल ये कि ये मुशायरा तो कई एतबार से हल्का रहा कि बहरहाल लोगों ने अपना कलाम पेश किया, वो सब बहुत मोहतरम और मोतबर हैं और उन्होंने बहुत अच्छा, फारूक साहब ने इतना अच्छा कलाम पेश किया और आपने इतना अच्छा कलाम पेश किया, तिलेरी साहब बहुत अच्छा कलाम पेश करके गए। लेकिन मेरी गुजारिश सिर्फ यही है कि ये इतनी बड़ी बड़ी अंजुमनें हैं, इनके इतने बड़े नाम हैं और इतना बड़ा काम है, इतनी प्रूवन एबिलिटीज हैं, तो ये जरा इस पर गौर करना चाहिए कि या तो इस तरह की नशिस्त का एहतमाम ना किया जाए जिसकी तैयारी मुकम्मल ना हो, या अगर किया जाए तो उसको एहतमाम से किया जाए। तो मैं आगे बात को बढ़ा रहा हूँ। अब कायदे ताज़ा में हम कंसर्ट नहीं लेते, मगर 7 सालों में कभी ऐसा ना हो कि आखिर में 2-3 शोरा रह जाए। जी, मगर उसमें यही ना, जी हाँ, आप कंसर्ट नहीं लेते, लेकिन ये कि वो एक एतबार आपका बन गया है ना
लोगों को सबको ये पता होता है कि सबको इज्जत और तौकीर के साथ और उनको आखिर तक उस तरह से मौका दिया जाएगा। यहाँ पर इतनी तेजी से फॉर्मेट चेंज होते हैं, कभी सीनियर्स को पहले पढ़ाया जाता है, कभी जूनियर्स को पहले पढ़ाया जाता है। तो बात यही है कि मैं कोई एतराज नहीं कर रहा, मगर मैं ये चाह रहा हूँ कि देखें ये मुशायरे, जी हाँ, मुशायरा जो है वो सिर्फ अंजुमन सताइश बाहिमी का नाम नहीं है कि हम एक अंजुमन बना लें और सब लोग एक दूसरे की तौसीफ और तारीफ बयान करते रहें, सिर्फ इसका नहीं, बल्कि ये उस तहजीबी रिवायत का एक फरोग है, उसका तसलसल है और उसका हमें एहतमाम करना चाहिए। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ जो है वो आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और मैं इस वक्त कोई कलाम पेश नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मेरा ख्याल ये है कि मुंतज़मीन को इस तरफ सोचना चाहिए और इस बात को गौर करना चाहिए। आपकी बात वजह है, मगर हम तो आपके मुंतज़िर बैठे हैं कलाम के, हम तो सुनेंगे। नहीं मगर मैं ऐसे, जी हाँ, आपको पता है मैं बड़ा मामला फहम आदमी भी हूँ, मैं कोई किसी चीज को रद्द नहीं करता, मगर बात ये कि ये बात मैं अरबाब इख्तियार तक पहुंचाना चाहता हूँ कि आप चाहे आप इसको एहसन खूबी करेंगे तो ये काम बहुत अच्छी तरह चलेगा। सर आप सबकी, आप जो लोग मौजूद हैं वो मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है और मैं चंद अशार पेश कर देता हूँ कि 1000 हरफे शिकायत मलाल अपनी जगह। भाई 1000 हरफे शिकायत मलाल अपनी जगह, तेरे वजूद का हुस्नो जमाल अपनी जगह, तेरे वजूद का हुस्नो जमाल अपनी जगह और जलाए बैठे हैं फिक्रो नजर की कंदीलें। जलाए बैठे हैं जनाब इस्लाम साहब, जलाए बैठे हैं फिक्रो नजर की कंदीलें, मगर वो कम नजरी और सवाल अपनी जगह, मगर वो कम नजरी और सवाल अपनी जगह, और वो चश्मे नम दिल शोरीदा कुल्फते हस्ती, वो चश्मे नम दिल शोरीदा कुल्फते हस्ती, निगाहे नाज का हुस्ने कमाल अपनी जगह, निगाहे नाज का हुस्ने कमाल अपनी जगह। और अर्ज कर रहा हूँ कि तवाफे मंजिले जाना तो शेवाए दिल था, तवाफे मंजिले जाना तो शेवाए दिल था, वो एक हिज्र की सूरत विसाल अपनी जगह, वो एक हिज्र की सूरत विसाल अपनी जगह। और जनाब इसी मंजरनामे पर का शेर है जो शायद आप लोग समझे कि कहीं सिंक्रोनाइजेशन हो रही है, हालात से मुमासलत हो रही है। मैं ढूंढता हूँ वो फैजाने नगमाओ आहंग, मैं ढूंढता हूँ वो फैजाने नगमाओ आहंग, है ज़ब्त गम मेरी आदत धमाल अपनी जगह, है ज़ब्त गम मेरी आदत धमाल अपनी जगह। और मताए जान तुझे किस तरह संवारना है, मताए जान तुझे किस तरह संवारना है, बकदरे होश चले हैं जवाल अपनी जगह, बकदरे होश चले हैं जवाल अपनी जगह। और दिले खराब को ख्वाहिश ने मार डाला शाद, दिले खराब को ख्वाहिश ने मार डाला शाद, कहाँ का तर्क मोहब्बत ख्याल अपनी जगह, कहाँ का मोहब्बत ख्याल अपनी जगह। वो चश्मे नम दिले शोरीदा कुल्फते हस्ती, निगाहे नास का उसने कमाल अपनी जगह। और जलाए बैठे हैं फिक्रो नजर की खिंदीलें, मगर वो कम नजरी और सवाल अपनी जगह। 1000 हरफे शिकायत मलाल अपनी जगह, तेरे वजूद का हुस्नो जमाल अपनी जगह। बहुत शुक्रिया आपकी खूबसूरत समाअतों को, आप सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जलाए बैठे हैं फिक्रो नजर की कंदीलें, मगर वो कम नजरी और सवाल अपनी जगह। खूबसूरत कलाम अता फरमाया जनाब उस्मान शाह साहब, हमारे आज के साहिब सदर। और अगर साहिब सदर की इजाजत हो तो मुझे नजर आ रही है रिफत अंजुम साहिबा, मैं उनको जी जरूर पढ़वा लें अगर तशरीफ लाई है तो। मैं उनको दावत दे रहा हूँ तशरीफ लाएं और आज के मुशायरे में अपना कलाम अता फरमाएं। मोहतरमा रिफत अंजुम साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम।
سب سے پہلے بہت مبارک خواہ ہوں، اور صاحب صدر کی وہ یہ تو ویسے وہ ہو جاتا ہے نا، کوئی بات نہیں، اگر آپ نہ کلام سناؤں تو کوئی ایسی بات نہیں، لیکن میں نے کہا حاضری دے دوں، اچانک کہیں جانا پڑ گیا تھا. نہیں آپ صاحب عطا صدر کیجیے کے بعد کلام پڑھنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے، اور نہیں آپ پڑھیے ایسی کوئی بات نہیں، کوئی صحیفہ تھوڑی ہے جہاں لکھا ہوا ہے یہ تو ہم سب نشست ہے. جی ہاں آپ عطا کیجیے کلام عطا کیجیے. بہت شکریہ، آپ نے اجازت دی، بہت شکریہ آپ نے اجازت دی. ایک پنجابی کو پیش کرتی ہوں کہ صاحب صدر آپ کی اجازت سے جی عطا اردو کی کہ دل اندروں کوکا ماریاں، دل اندروں کوکا ماریاں تے جاگ پیا ضمیر، دل اندروں کوکا ماریاں تے جاگ پیا ضمیر، میرا جسا ننگا ہویا میں ہویا لیرو لیر، دل اندروں کوکا ماریاں تے جاگ پیا ضمیر، میرا جسا ننگا ہویا میں ہویا لیرو لیر، تے سب کرسی کرسی کھیڑ دے، سب کرسی کرسی کھیڑ دے تے گاون اپنی ہیر، تے کل جعفر صادق بنی پا لوہے دی زنجیر، کل جعفر بنی پا لوہے دی زنجیر، تے مرحب دے سر نو ٹنگیے پھڑ حیدر دی شمشیر، مرحب دے سر نو ٹنگیے پھڑ حیدر دی شمشیر، تے میں اج نظام نو پوچھیا، میں اج نظام نو پوچھیا دس کیڑا تیرا پیر، میں اج نظام نو پوچھیا دس کیڑا تیرا پیر، تے میرے ہتھاں وچ ہتھ کڑیاں، نظام کہندا ہے کہ میرے ہتھاں وچ ہتھ کڑیاں میں صاحب دا اسیر، میرے ہتھاں ہتھ کڑیاں میں صاحب دا اسیر، تے میرا دیس پیا اے روندا، میرا دیس پیا اے روندا کوئی ویکھے اے دے نیر، میرا دیس پیا اے روندا کوئی ویکھے اے دے نیر، تے ادی کنے صورت بدلی، صاحب صدر ایدی کنے صورت بدلی، ایدی کنے صورت بدلی، اینو کنے مارے تیر، تے کوئی ایندا وارث دے، کوئی ایندا وارث گھل دے جڑا بدل دے وے تقدیر، جڑا بدل دے وے تقدیر. بہت شکریہ. حالات حاضرہ کی تھی بہت عکاسی کی تھی، بالکل بالکل صحیح. اور جو مجھے یہ اعزاز ہے کہ میرا بچپن پنڈی میں گزرا ہے، اس لیے مجھے آپ کی پوری شاعری سمجھ میں آئی. جی محترمہ عارفہ انجم صاحبہ اپنا کلام عطا فرمائی تھی، پنجابی کلام عطا فرمائی تھی، اور اسی کے ساتھ مشاعرے کا اختتام کا اعلان کر رہا ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ کسی مشاعرے میں ملاقات ہوتی ہے، جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.